चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हों सर, हर किसी को महल चाहिए। What is the reason why the people are preferring the Gurgaon? कि गुड़गांव के बिल्डर को आपका पैसा नहीं चाहिए। आज भी गुड़गांव एक गोल्ड माइन के रूप में जाना जाता है, आगे ये ग्रो ही होना है। कोई 9.5 करोड़ में लॉन्च हो रहा है, हो रहा है कोई 15 करोड़ हो रहा है। कमीलिया की तो बात ही छोड़ दो। दादा दादी कहते हैं छत तो बेटा होनी चाहिए। होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए। मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं अब कुछ टाइम 10-12-15 साल से गुड़गांव रह रहा हूँ। दिल्ली से मैं गुड़गांव क्यों शिफ्ट हुआ? बहुत सिंपल सा रीजन था, मेरे को 1.5 घंटा आने में लगता था, 1.5 घंटा जाने में लगता। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए और मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊँ और आधे घंटे में आ जाऊँ, मैं घर ही नहीं खरीदूंगा गुड़गांव में। सो सर, आपने जैसे प्रीवियस पॉडकास्ट में देखा होगा, हमारे पास प्रोबेबल बायर्स आते हैं फॉर डिस्कशन। वी हैड एन एनआरआई ऑल्सो, उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ। एंड देन वी हैड एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, एक वर्किंग प्रोफेशनल थे, उनसे भी हमारा डिस्कशन हुआ। तो आज तो एक सीरियल इन्वेस्टर आए हैं हमारे पास, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि आज पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। बट नेवरदीलेस स्टार्ट करते हैं सर। आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। Yeah, thanks, Sunil. Actually, Sunil, the real estate is such a challenging market. Yes. Although you are telling me the seasonal investor, You but are a seasoned it investor. it is a dynamic market, Right, you're right. and as you have seen and I have also seen, it is zigzag movement. It was exactly It is never a straight line. correct. So I think in nowadays I'm finding it very relevant to have a portfolio of a consultant who Right. can really advise you. Advise. So I think after seeing your last episode, I had an idea like what is the difference between the dealer or a property advisor, Right, right. or the people are calling and approaching me. Yes. I am seeing a lot of pamphlets, newspaper pamphlets. So these are confusing. Right. And I told you that I belong to corporate world, and especially from the finance side. Right. So sometimes people are also asking, sir, whatever you have done in your area, Right. can you have a good advice? Good advice. Yes. So at the time, I am also confused. What to suggest? No, I can understand. I think in that time, a proper advisor consultant Yeah. is It's very required. important. Yes. So tell me, what you are going to helping me out in this scenario where there is a lot of movement, there are a lot of regulations also coming Correct. in the way. Correct. Similarly, the government is also changing their loan profile. Right. They are giving very stringent loan parameters, Right. and people has a lot of challenging about the proper approval of the area where we are going to buy the property. Buy the property. Right. And sometimes there is a confusion that whether I should go for plot, whether I should go for the flat, Correct. whether I should go for the floors or go for the multi-story. Multi-story. Right. So everywhere deciding or advising or choosing is challenging. It's challenging. Right. So I will like to have your idea, highlights, and your you can say advice in this direction. Correct. So sir, पहले तो यही डिस्कस करते हैं कि whether plot is a better investment or a floor is a better investment or a multi-story apartments is a better investment. So to start with plot तो सर लैंड है, लैंड लिमिटेड है, और लैंड तो रेट बढ़ता ही है उसके। It cannot be created. It cannot be created, right? So this is something which is limited, and anything which is limited will give you a better result or better return, I'll say. तो एक प्लॉट बाइंग करना, अगेन उसकी लीगैलिटीज चेक करना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लॉट्स पुराने बिके हुए हैं सर, अगर हम गुड़गांव की बात करें, सो 1980 1990 के टाइम पे प्लॉट्स बिके हुए हैं। बहुत सारे प्लॉट्स डिस्प्यूटेड हैं, बहुत सारे पीछे ऐसे भी केसेस हुए थे कि किसी का प्लॉट किसी ने बेच दिया। तो थोड़ा सा बिकॉज अनरेगुलेटेड है काइंड ऑफ, तो और ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व हैं और कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं, तो Yes. हमें ना बहुत ध्यान से प्लॉट बाइंग करनी चाहिए। रादर अगर हम ऐसा कर सके कि हम बिल्डर के ऑफिस में जाएं और वहाँ पेपर्स चेक करवाएं, या जैसे मैंने अपनी प्रीवियस पॉडकास्ट में बोला था कि आप एक लॉयर हायर करें और उससे रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, इस तरह ड्यू डिलिजेंस करा ड्यू लो। डिलिजेंस कराएं कि कोई लोन तो नहीं है, कोई वो नहीं है, और उसके बाद प्रोसीड करें तो बेटर है। सो तो प्लॉट ऑलवेज कम्स एट नंबर 1 एज फार एज द इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न। For floors and But here I would like to interrupt. yes sir, please. Like
I have heard about the RERA regulation. करेक्ट So are these applicable in case of plot also? सर, जो नए बन रहे हैं उनके लिए यस, Okay. क्योंकि 2016-17 के बाद जब से रेरा आया है, उसके बाद जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर इवन इफ इट इज़ अ प्लॉटेड कॉलोनी, रेरा रेगुलेशंस उसके अंदर बिल्कुल आती हैं। और अगर आप कोई 17-18 के बाद का प्रोजेक्ट ले रहे हैं और वो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, तो पहली बात तो आप उस पार्ट से सेफ हैं कि पेपर वर्क इज़ कंप्लीट। बट उसके बाद भी जिसने पहले खरीदा और वो अब आपको बेच रहा है, तो वो ड्यू डिलिजेंस तो फिर भी आपको एक बार करवानी ही पड़ेगी और वो ज़रूरी भी है। Correct. राइट। अब जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा था, फ्लोर्स वर्सेस मल्टी लेवल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। नाउ फ्लोर्स वर्सेस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मैंने पर्सनली ऐसा देखा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बेटर रिटर्न्स आए हैं एज कम्पेयर टू फ्लोर्स। Correct. उसका कुछ रीज़न भी रहा, बिकॉज फॉर अपार्टमेंट्स गवर्नमेंट की कोई बहुत ज़्यादा पॉलिसीज चेंज नहीं हुई ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 15-20 ईयर्स। लेकिन अगर हम फ्लोर्स में देखें तो सर देखिए, आपको भी पता होगा पहले फ्लोर्स में ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड बनता था। Yes. ठीक है सर। Yes. फिर उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ पार्किंग प्रॉब्लम, और क्योंकि ये सारे प्लॉट्स एक टाइम पे कोठियां बनने के लिए अलॉट हुए थे। Originally, yes. अगर आप ओरिजिनली देखेंगे तो कोठियां बनने के लिए मैंने allot भी वो हुए थे। देखा, ये तो जबरदस्ती करा होगा। तो जो कोठियां बनने के लिए प्लॉट था उस पे अब आज समय की मांग के कारण अगर उस पे हम मल्टीपल घर बना रहे हैं, तो पहले ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड बनना शुरू हुआ। अब उसमें जहाँ पे एक घर की जगह 3 घर बनने शुरू हुए तो गाड़ियां बाहर लगनी शुरू हुई। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टिल्ट का एक ऑप्शन निकाला गया, निकाला, yes. स्टिल्ट +3 का, राइट। तो बेसिकली बिल्डिंग को ऊपर उठा दिया गया, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड जो है वो 1 2 3 बन गया और नीचे स्टिल्ट आ गया। पार्किंग का जोन क्रिएट पार्किंग का एक जोन क्रिएट कर दी गया, विच वाज अ गुड इनिशिएटिव। यस। अब उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक नई पॉलिसी आई जिसमें कि 3 की जगह 4 फ्लोर अलाउड हो गए। तो सर जैसे ही 4 फ्लोर अलाउड हुए, तो अब आप देखिए ये पूरी जर्नी देखिए कि आज अगर स्टिल्ट +3 का घर मुझे मिल रहा है तो मैं ग्राउंड फर्स्ट सेकंड वाला घर नहीं खरीदूंगा। वेरी राइट। मेरे को ज्यादा इम्यूनिटी मिल रही है ना सर, उसमें मेरे पार्किंग मिल रही है रिजर्व में, सड़क पे गाड़ी क्यों लगाऊंगा अपनी। ठीक है। उसके बाद जब वही घर में 3 की जगह 4 फ्लोर बनने लग जाएंगे, सो आप ये सोचिए कि उसी लैंड के ऊपर जो 100 रुपए की चीज थी, जो 33 रुपए की 3 लोगों को बिकती थी, वो 25 रुपए की 4 लोग। आप तो फाइनेंस में है सर, तो मेरे को तो सस्ता मिल रहा है, मेरे को नया घर मिल रहा है, नया फ्लोर मिल रहा है आइल से, और सस्ता मिल रहा है पहले वाले से, राइट। तो मैं अपग्रेडेड ही लेना चाहूंगा। तो अब वो स्टिल्ट +3 भी बिकना बंद हो गया, क्योंकि वो सर जब 33 रुपए का बिका है तो वो महंगा बिकेगा ना, और 25 रुपए का मुझे मिल रहा है, तो आप ही सोचिए कि मैं अपग्रेडेड में ही जाऊंगा। अच्छा, उसके बाद सर फिर एक नई पॉलिसी आई कि जो कवरेज होती थी वो 65% होती थी शायद पहले, वो बढ़ा के 75% कर दी गई, फिर वो 80% कर दी गई, फिर कुछ पेनल्टीज पे करके या कुछ FAR बाय करके शायद वो 85% तक भी अब कर दी गई है। 85%। तो सर अगर ऐसा है तो आज अगर मैंने आपसे आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले कोई फ्लोर खरीदा था, तो कोई भी बायर अगर उस फ्लोर को देखने आएगा और वो नया फ्लोर देखेगा, तो वो हमेशा चाहेगा नया घर ले, अगला अपना घर ले रहा है, पूरे पैसे लगा रहा है। ऐसे मौके पे डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट भी हो सकता है। डिफिकल्ट भी हो सकती है सर। तो फ्लोर्स की जर्नी में मैंने ये देखा, और अभी तो पीछे बिल्कुल ही कैंसिल हो गई क्योंकि अब तो स्टे ही लग गया है, लग जाता है। और अब प्लॉट का जो है राइट और लेफ्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, NOC लेना पड़ेगा, तब बनेगा। तो इतनी सारी ना सब पेन्स नहीं लेना चाहता एक बायर, वो चाहता है क्लीन डील मिले, उसको साफ सुथरी डील मिले, और चाहे किसी के पास कितने भी पैसे हों सर, हर किसी को महल चाहिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको एक अच्छा घर चाहिए, उसके हिसाब से महल होना चाहिए। और कहीं सुनिए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता तो है। कॉमन फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी लिमिटेशन भी हो जाती है। और अगर मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो गया है और बदले में मुझे एमिनिटीज भी नहीं मिल रही हैं, तो सर फिर मैं एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जाना चाहूँगा जिसमें कि ये वेरिएशंस नहीं आई, जो पहले था आज भी वही है। तो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी हमेशा आपको अट्रैक्ट करती है। तो आप अपार्टमेंट्स, दैट इज द रीजन अपार्टमेंट्स, आप बताइए ना सर, फ्लोर्स इतने सारे बन रहे हैं, अगर वो एक स्टिल्ट और 4 फ्लोर बन रहे हैं, आप आज से 1 महीने पहले भी बिक रहा था, आज भी बिक रहा है, और शायद अगले महीने भी आपको मिल जाएगा। सुनिए, सपोज करो मैं कंक्लूड करना चाहूँ तो मेरा कहना है कि जो बिजी एग्जीक्यूटिव हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, बिल्कुल सर, जिनका समय नहीं है, दे मस्ट चूज हाई राइज कॉन्डो। सर उनकी फैमिली सेफ है पीछे से, ठीक है, आपके कैमरास लगे हुए हैं, आपके पास क्लब हाउसेज हैं, बच्चे को बाहर पार्क में खेलने नहीं जाना है, वो अंदर है सोसाइटी के, तो सेफ है। तो आप यू आर एट पीस ऑफ माइंड कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सिक्योर्ड हैं, सेफ हैं। लाइट चली जाएगी तो पावर बैकअप आ जाएगा, उनको पंखा नहीं झेलना पड़ेगा या जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा, पानी नहीं भरने जाना पड़ेगा। तो ये सब बेनिफिट्स के कारण हमें ऐसे लगता है कि प्लॉट्स इज ऑब्वियसली, जैसे मैंने बोला, नंबर 1 प्रायोरिटी। सेकंड इज अपार्टमेंट्स, जो आपको अच्छी ROI भी देंगे एंड एक अच्छा सेलेबल प्रोडक्ट भी इसका रहेगा। मतलब ये है कि मैं रिसोर्स लूँ, लॉयर हूँ, तो यहाँ अपार्टमेंट
कि बेटर मैं लैंड पे चला जाऊँ, अप्रिशिएशन बेटर है, बट वहाँ रिसोर्सेज मेरे को मैनेज करने पड़ेंगे रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे कि उसका Yes. ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर हो, वो आपकी रिस्क एंड रिवार्ड थोड़ी अटैच हो जाएगी सर वो तो हमेशा ही होता है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट का फॉर्मूला जरूर चलता है, बट आई थिंक आज की डेट में कैलकुलेटेड रिस्क Risk इज अ लेना। बेटर डिसीजन. करेक्ट. आई थिंक इट इज बेटर दैट वी गॉट अ आइडिया ड्यूरिंग द डिस्कशन दैट अपार्टमेंट्स, स्पेशली मल्टी स्टोरी सर अपार्टमेंट्स, तभी तो आप एक दिन के अंदर पूरे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं बिकॉज डिमांड है. करेक्ट. लोग सुनील, एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि सिंस आई एम सिटिंग इन एनसीआर, राइट सर. so there are various other areas, Gurgaon, then Noida, then Faridabad. So, but I am seeing that there is more demand coming from Gurgaon side. करेक्ट. What is the reason and why the people are preferring the Gurgaon? सर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, देखिए कहीं पे भी कोई भी अप्रिसिएशन आती है तो वो कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होती है उतने बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट होते हैं, लोग उस जगह पे जाना चाहते हैं. Correct. तो एज अ गुड़गांव अगर मैं देखूं तो गुड़गांव वाज ऑलवेज क्लोजर टू द एयरपोर्ट. Very right. Yes, Right. that I am seeing. आज आप देखिए ना, नोएडा के अंदर एयरपोर्ट आया है, प्रैक्टिकली नोएडा से शायद 50-60 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है, बट पूरे नोएडा के अंदर अप्रिसिएशन हुई है. तो गुड़गांव से तो एयरपोर्ट शायद 15-16-17 किलोमीटर ही दूर था. हाँ हाँ, और डेफिनेटली इतना ही था ना 25-30 मिनट लगते थे, हम पहुंच जाते 25-30 मिनट लगते थे. और अब जो द्वारका एक्सप्रेस वे ओपन हुआ है थे. वहां से तो शायद 10 मिनट की दूरी पे है एयरपोर्ट. हाँ हाँ, डेफिनेटली. ठीक है ना? Yes. तो सर जब आपके पास कनेक्टिविटी है, हाईवे की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी है आपके पास, और हरियाणा की थोड़ी सी पॉलिसीज़ भी फेवरेबल रही हैं, ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज आई हैं, साइबर सिटी बना है सारा. तो इन सबको देखते हुए जो है आज भी गुड़गांव एक गोल्ड माइन के रूप में जाना जाता है और आगे ये ग्रो ही होना है. तो कहीं ना कहीं अगर हम बाकी लोकेशन से, प्लस सर एक चीज़ और भी देखिए, हम यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ऑल मोस्ट ऑफ द ए ग्रेड डेवलपर्स एंड मोस्ट ऑफ द लिस्टेड कंपनीज, द रियल एस्टेट लिस्टेड कंपनीज आर अवेलेबल इन Yes, गुड़गांव. yes, that is a good observation. DLF, Birla, Adani, you have Mahindra, you have Emaar, you have Signature Global, you name it, all of these So companies. where we expect more transparency, and Yes. they are under the regulatory करेक्ट. controls. सर उनकी रेरा रेगुलेशन तो एक रेगुलेशन है, उनकी अपनी एमसीए की Like SEBI, रेगुलेशंस SEBI हैं, का जो requirement सेबी है का अपने आप में. रिक्वायरमेंट है, उनको टाइम पे अपनी रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं, सेल्स बतानी होती हैं. Very Yeah, right. I think this is a very good point. तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. इवन सर जब ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां गुड़गांव को प्रेफर कर रही हैं तो देयर इज सम रीजन टू इट, Yes, yes, राइट? definitely. सो दैट इज वन ऑफ द But I इम्पोर्टेंट think one important point which you have raised is like these are the listed companies, and I think they will not have the resource crunch. करेक्ट. Like sometime what happens कि लोग बाग बीच में अपना काम छोड़ के भाग जाते भाग जाते हैं, राइट. हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती मैं है. यही बोलता हूँ, मेरे पास कुछ पीछे भी इस बार इस टाइप से डिस्कशन हुआ. सो आई एम वेरी क्लियर कि गुड़गांव के बिल्डर को आपका पैसा नहीं चाहिए, हाँ. वो बना देगा बिल्डिंग. आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी किस्तें रुक सकती हैं, उसका काम नहीं रुकेगा. Because these are deep pocket cash rich companies, these are A grade developers, these are listed companies. उनका नाम अपने आप में इतना बड़ा है कि अगर उनका प्रोजेक्ट नहीं भी बिकेगा तो भी बन जाएगा. यू आर राइट, बिकॉज अल्टीमेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और आई थिंक हम लोग जो फाइनेंस वाले बोलते हैं कि अल्टीमेटली रेवेन्यू क्लोज तो कहीं होनी है. कहीं तो होनी है सर. यदि रेवेन्यू क्लोज नहीं होगी तो बुक्स में नहीं बैठेगी तो रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे. नहीं आएंगे. और सर अगर आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, मान लो आपका नहीं भी बिका है बट आप एसेट क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी वैल्यूएशन तो बढ़ी रही है, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप पोजेशन पे उसको सेल करोगे तो आज के प्राइस से ज्यादा भी बेचोगे. यू स्टिल आर एट अ बेटर. अच्छा सुनिए, कई बार मेरे को ये लगता है कि एज ए कंसल्टेंट मैं आपसे एडवाइस ले रहा हूँ, तो कहीं मुझे लगता है कहीं आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है या मेरा इंटरेस्ट आप ज़्यादा देख रहे हैं. कैसे मैं इसको वेरीफाई करूँ? क्या आपको लगता है कि आपके क्रेडेंशियल में, जैसा मैं शेयर का एडवाइज़र हूँ तो मेरा सेबी से रजिस्ट्रेशन है, जी बिल्कुल ठीक है. आई गेट माई क्रेडेंशियल, करेक्ट. या मेरे पीछे कुछ ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरी बैलेंस शीट है, बिल्कुल ठीक है. तो मैं इन जनरल मैं आपको नहीं टारगेट कर रहा हूँ. नहीं बिल्कुल ठीक है सर, एक जनरल पॉइंट है, अच्छा है, बिल्कुल सही बात है. Because as a chartered accountant, Right. sometimes I have to advise my brother, my consultant, my client as well. राइट. So आप अपने credential बनाने के लिए हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म अवेलेबल? I am not saying that you have to run alone, राइट. but is there any proper platform available to register yourself यस. as a proper Yes. consultant? सो सर जैसे I like to understand in detail. I'll tell you, like RERA registers the developers projects Correct. and control their funds and everything. There is a proper law for all these new projects coming up. Similarly, a consultant also he also has to get themselves registered under RERA. So you get a proper certificate. So I have a proper certificate. Any consultant in Okay. Gurgaon who's doing real estate business has to take a license and get it registered through RERA. So I have a RERA certificate. We have
we have GST certificates and तो और कल को अगर कोई कस्टमर हमारी कंप्लेंट करता है रेरा के अंदर तो वो रिकॉर्ड्स के अंदर शो होती है। अच्छा, दिस इज ट्रू। सर एवरीथिंग इज देयर। देखिए Oh. बहुत सारे लोगों को ना ये चीज़ पता ही नहीं है। मैं इनफैक्ट चलो कंसल्टेंट्स को तो छोड़ो, मैं बिल्डर्स के लिए भी बोलता हूँ कि आपको जो बिल्डर लेआउट दिखा रहा है, आपको जो ब्रोशर बिल्डर दिखा रहा है, आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको कई बार लगता है कि यार ये लिख देते हैं कि पूल बनाएंगे, नहीं बनेगा। यू गो टू रेरा वेबसाइट, यू डोंट नीड एनीबॉडी। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप रेरा की वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें, प्रोजेक्ट सर्च करें, उस प्रोजेक्ट के लेआउट्स, उस प्रोजेक्ट के अपार्टमेंट लेआउट्स, उस प्रोजेक्ट सोसाइटी लेआउट, राइट, उस प्रोजेक्ट का एस्क्रो अकाउंट नंबर, everything is mentioned there. Because sometimes I was reading that 70% of the money they Yes, have to yes, keep in escrow account, and that will be dedicated to this project Yes, only. सर पहली बात एस्क्रो अकाउंट है तो सारे पैसे इसी सारे project पे पैसे dedicated उसी है, पर्पस के लिए यूज purpose होंगे। के लिए। उस एस्क्रो अकाउंट में से प्रॉफिट विड्रॉ तभी होगा जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, जब वो ओसी का सर्टिफिकेट बिल्डर जमा कर देगा। सेकेंडली इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे बिल्डर कंस्ट्रक्शन करता जाएगा, वो ऐसा नहीं है 70% है, देयर आर माइलस्टोन्स टू इट, वो उतना उतना पैसा रिलीज बिल्डर को होता जाता है। Okay. Similarly, for a consultant also, if a consultant has done any fraud or has done any wrong transactions, and if the customer reports to it, it is there on the website. And if you go and search कि इस ब्रोकर से मैं खरीद रहा हूँ या इस कंसल्टेंट से मैं खरीद रहा हूँ, इसके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है रेरा में, आपको मिलता है ना सर सब कुछ। अच्छा, your name is Yes, very much available It is on there? registered, you can go and Okay. search. तो Okay. I मेरा was not knowing this. करेक्ट। तो सर मेरा यही सजेशन होता है कि आप जिससे भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आप उनसे उनका बिजनेस कार्ड मंगाते हैं, आप उनसे रेरा सर्टिफिकेट भी मंगवाएं, उसको प्रॉपरली वेरीफाई करें, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो बाउंड विद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इफ़ ही डज समथिंग रॉन्ग तो लीगल एक्शन केसेस उनके ऊपर भी होंगे। बहुत बहुत ईजी हो गया है आजकल, बट सिर्फ ये है कि अवेयरनेस नहीं है, मैं ऐसा बोलूँगा। नहीं, इसमें आपने सुनिए 2 पॉइंट आपने बहुत से मेरे को बताया। वन इज लाइक दीज आर ऑल लिस्टेड कंपनीज, राइट, they are also bothered like me. करेक्ट, I have to do the compliance. Correct. Second part is you as a consultant registered somewhere करेक्ट, where I can take the action against you करेक्ट, if you are not doing good. करेक्ट। तो सर रेरा अप्रूव्ड ब्रोकर से या रेरा अप्रूव्ड कंसल्टेंट से प्रॉपर्टी खरीदो, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट खरीदो, बिल्कुल, आई थिंक रिस्क इज बीइंग प्रॉपर्ली एड्रेस्ड है। उसके बाद भी सर देखिए लॉ में फ्लॉ होते हैं, किसी ने अगर चोरी करनी है तो होती है, मैं मना नहीं कर रहा उस चीज़ के लिए, बट बहुत कंट्रोल्ड है, करेक्ट। बहुत कंट्रोल्ड है। आप टू गुड टू बी ट्रू स्कीम्स पे मत अट्रैक्ट हो, तो आई थिंक चीज़ें सॉर्टेड है। वेरी राइट। अच्छा सुनिए, एक चीज़ और आप मैसेज चाहूँगा, जो लोग मेरे से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें प्रॉपर्टी तो लेनी है, लेकिन आप एडवाइस करेंगे कि रेजिडेंशियल लें या कमर्शियल लें? तो एक देखिए, एज ए टैक्स कंसल्टेंट मैं उनको कहता हूँ भाई रेजिडेंशियल ले लो, बिकॉज उसमें टैक्स प्लानिंग हो जाती है, राइट। बट मैंने ये मतलब आपसे ये क्वेश्चन मेरा रहेगा कि टैक्स प्लानिंग तो देखिए एक साइड है, बट रिटर्न्स किस में बेटर मिलते हैं? करेक्ट, मतलब आप टैक्स को छोड़ दीजिए, तो आई विल लाइक टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। और बीच में एक चीज़ सर्विस अपार्टमेंट और आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तीसरी चीज़ को भी मैं थोड़ा सा लुक्रेटिव मेरे को लगता है। करेक्ट, करेक्ट। तो हम यदि मैं किसी को एडवाइस करूँ तो किसी को रेगुलर रिटर्न चाहिए। जनरली देखिए जो बिजनेसमैन होता है उसको एक हेजिंग करनी होती है, रिस्क, जैसे हमारा पीएफ है, ईएसआई है सर्विस क्लास के लिए, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, राइट। तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? मतलब कितना पोर्शन लें, कैसे करें, और सर्विस अपार्टमेंट जाएं, रेजिडेंशियल में जाएं, प्लॉट में जाएं, या फिर वो किसी कॉमर्शियल चीज़ में जाएं? तो आपका जनरल, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा कि आप बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर एक ही चीज़ के हर एरिया का अपने अपनी पिक्युलरिटी है। ठीक है सर। तो देखिए अगर हम हेजिंग की बात कर रहे हैं तो पहले तो जो भी जिस भी इंडस्ट्री में जो भी है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि वो उसी इंडस्ट्री में फोकस करें, और बिकॉज दैट्स दी ब्रेड एंड बटर, वहीं से आ रहे हैं, वहीं से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, और Very उसको right. आप चर्न करना चाह रहे हो रियल एस्टेट में। सो फोकस वहीं रखें, वहाँ पे एज एन इन्वेस्टर आके 5-5, 8-8 प्रॉपर्टीज़ ना खरीद के उसको मल्टीप्लाई करने के लिए लग जाएं, तो उसमें क्या होता है सर, मेन बिजनेस भी छूट जाता है क्योंकि फोकस यहाँ हो जाता है, और मार्केट जैसे आपने स्टार्ट ही किया था पॉइंट की, बहुत जिगजैग चलती है, हाँ, राइट। तो टिल द टाइम यू आर नॉट फोकस्ड एंड यू आर नॉट इन्वॉल्व्ड, तो आप ट्रेडिंग वाला काम तो नहीं कर सकते उसमें। करना, ट्रेडिंग में वैसे भी सजेस्ट ही नहीं करता, करना ही नहीं चाहिए, बट आप अपने काम पे फोकस करें। प्लस जो भी आपके ईयरली प्रॉफिट्स हैं उसमें से आप एक परसेंटेज सेट कर लें, भाई 5%, 10%, 15%, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, 20%, इतना पैसा मैंने रियल एस्टेट में यहाँ से निकाल के डालना है। एक टेंजिबल एसेट है, धीरे धीरे प्रॉपर्टी बन जाएगी, प्रॉपर्टी ग्रो भी करती है, इट इज़ गुड, शुड बी डन। नाउ what should be done, whether we go for a residential property, whether we go for a commercial property, तो इसमें बहुत सारा, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में एक चैप्टर है
क्योंकि residential- आंसर इज नॉट दैट सिंपल। नॉट दैट सिंपल। तो रेजिडेंशियल में भी क्या होता है सर कि एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी तरीके से कमर्शियल के अंदर भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ हैं। बट अगर हम सिर्फ ROI की बात करें, if somebody already owns the house, his first house where he's staying, and he owns multiple properties, or like you said, they have their other businesses, multiple businesses, and now they want to invest for the returns, then commercial property gives a better return, no doubt. रेजिडेंशियल का जो नॉर्मल रिटर्न है सर वो 2-3% के आसपास का प्रॉपर्टी वैल्यू का रिटर्न आता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का रिटर्न 2-3% से शुरू होता है, 4% से शुरू होता है, अच्छा, that's 6-7-8% तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन से ब्रांड को दे रखा है या किस तरीके की प्रॉपर्टी ले रखी है। पैरेलली आई विल ऑल्सो से कि कमर्शियल थोड़ा सा ट्रिकी भी है, मतलब हायर दी रिस्क जैसे होता है ना, तो वो थोड़ा सा रिस्की भी है। बिकॉज अगर 1% बिल्डर आपने गलत पिक कर लिया और आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जो चलो बन तो जाएगी, आजकल रेरा है तो बिल्डिंग डिलीवरी तक तो पहुंच जाती है, ठीक है ना, तब तक आप कंप्लेंट कर सकते हो, तब तो आप कंप्लेन कर सकते हो। अब डिलीवरी हो गई, बिल्डर ने आपको पोजेशन दे दिया, अब तो बिल्डर का एस्क्रो अकाउंट का कोई लेना देना नहीं, उसका प्रॉफिट भी निकल गया। अब वो अगर उसको ढंग से लीज नहीं कर पाता है और वो खाली पड़ी है, तो सर ऐसे बहुत सारे खंडर मॉल्स हैं गुड़गांव के अंदर, ठीक है ना, जिसका किसी भी रेट पे ट्रेड नहीं होता। So if you want to go very safe, pick up a residential property, अपना रेंटल पे चढ़ाओ, 2-3% का रेंटल आराम से खाओ, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होगी, वो भी बेनिफिट मिलेगा। यू वांट टू मेक गुड ROI, अच्छे बिल्डर का कमर्शियल पिक करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आज से यहाँ से अगर 10-15-20 किलोमीटर दूर भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होगा ना सर, और वो बन के तैयार हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑडियंस है, कोई ना कोई रहने आ जाएगा। शायद गुड़गांव में ही कोई जो काम करता होगा बोलेगा यार ये तो मेरे से कैपेसिटी से बाहर हो गया। मेरे ख्याल से ऐसी कॉलोनी जो सेल्फ सस्टेनेबल होती है, सेल्फ सस्टेनेबल सब कुछ उसके अंदर मिलता है। दूसरा रेजिडेंशियल का क्या होता है कि अगर रेजिडेंशियल ऑफ लोकेशन पे भी है ना थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को ये लगता है कि यार यहाँ कोई बायर है, उसको ये लगता है यहाँ मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदूंगा, वहाँ मुझे 1 करोड़ की मिल रही है, मेरे को 10 किलोमीटर ट्रैवल ही करना है ना, मैं ले लेता हूँ। तो रेजिडेंशियल आपका रेंटल आएगा ही आएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। कमर्शियल में बहुत अच्छा रेंटल आएगा, पर आएगा कि नहीं आएगा, खाली पड़ा रहेगा कि चल अच्छे से चलेगा, वो आपका जो भी आपने एक अगर अच्छा डेवलपर चूज किया हो, तो कैसे देखते हैं अच्छा डेवलपर, आप देखिए पहले प्रोजेक्ट कौन से बनाए हैं, वो जो प्रोजेक्ट्स बने हैं क्या वो खाली पड़े हैं, ठीक, वो 100% लीज्ड आउट है। और इसमें एक बहुत सिक्योर्ड बेट भी हमारे पास होती है, जो एज अ कंसल्टेंट हम एडवाइस भी करते हैं कि गो फॉर अ प्री लीज्ड प्रॉपर्टी। कोई बिल्डिंग बन चुकी है, आपका वो रिस्क खत्म हो गया, बिल्डिंग का पोजेशन होने के बाद किराएदार भी आ गया है, सो अ टेनेंट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, तो आपका वो चैलेंज भी खत्म हो गया कि मेरी दुकान खाली रहेगी। सो योर 2 प्रॉब्लम्स, 2 स्टेप्स आर सॉल्व्ड, कि बिल्डिंग बन गई, पोजेशन हो गया, आई एम सेफ, आई गेट माई ताला चाबी, आई गेट माई रजिस्ट्री डन। Second option is I don't have to search a tenant, the tenant is already sitting, right, maybe a bank, maybe a coffee shop, right, or maybe a restaurant, or maybe a kind of an H&M or something, ऐसा कोई ब्रांड है अच्छा सा, और वो आपको बनी बनाई बिल्डिंग में बनी बनाई प्रॉपर्टी मिल रही है, उसमें आपका रिटर्न आ रहा है 4-5-6% का, बेस्ट है। आपके पैसे पाक हो गए सर, आपका रेंटल आना शुरू हो गया, टेनेंट लॉन्ग टर्म आते हैं 9-10 साल के लिए, सुपर सेफ। अच्छा सुनील, कई बार मैंने देखा ऐसी स्कीम भी बिल्डर से लॉन्च करते हैं कि आपका 10,000 स्क्वायर फीट, हाँ जी हाँ जी, ले पार्ट शेयरिंग करेक्ट एज ओनरशिप, करेक्ट, एंड दे अश्योर द रेंटल राइट 2 or 3 years, राइट, तो हाउ सेफ दीज इन्वेस्टमेंट्स आर? ओके, सो सर नॉर्मली हम लोग थोड़ा सा वर्चुअल जो है वो कस्टमर्स को एडवाइस नहीं करते हैं, थोड़ा एग्जिट ट्रिकी होता है, आई विल नॉट से टफ होता है, ट्रिकी होता है, बट आई थिंक अभी जो चल रहा है कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से दिस इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट, ओके, राइट। सो आई टेल यू हाउ द एंटायर कॉन्सेप्ट वर्क्स। सो अभी ऑफ लेट सर जैसे प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, तो छोटे टिकट साइजेस में आपको चीज़ें गुड़गांव के अंदर मिलती नहीं, मुश्किल है, राइट। एवरीबडी वांट्स कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे दुकान मिल जाए, मुझे फ्रंट फेसिंग की दुकान मिल जाए, बट मेरे पास पैसे बहुत कम है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, 50 लाख रुपए हैं, छोटा अमाउंट है, नहीं है, राइट। So this is a very good option to accommodate all those investors. Okay. They get their choice of ground floor or maybe whatever floor they are looking for, and they get a part of the area in a bigger area. इसमें सर होता क्या है कि डेवलपर जो है
उसको भी पता है कि अगर ये 10-20-25 हज़ार फुट एरिया खाली पड़ा रहा तो मेरे को आगे भी प्रोजेक्ट्स बेचने हैं और मेरे को इन्वेस्टर्स भी क्वेश्चन करेंगे कि यार इतना एरिया खाली पड़ा हुआ है, दिस इज नॉट द राइट थिंग। सो एज अ डेवलपर भी वो उस एरिया को लीज आउट करने में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं और आंसर टू इट कि वो अच्छे से लीज आउट हो भी जाता है। ओके, राइट, अब अगर वो अच्छे से लीज आउट हो जाता है तो सारे इन्वेस्टर्स के रेंटल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली 10-15-20 हज़ार स्क्वायर फीट में सर एक बहुत बड़ा ब्रांड आता है, कैश रिच, डीप पॉकेट्स, ए ग्रेड टेनेंट आता है, तो वो लॉन्ग टर्म रुकता भी है सर। एक्चुअली ये भी देखा कि ब्रांड ओनर्स की यहाँ पे कमी भी नहीं है, कमी भी नहीं है। एवरीबडी वांट टू एंटर इन द गुड़गांव। एग्जैक्टली, तो ये ना एक विन विन सिचुएशन है बिल्डर के Okay. लिए भी कि उसको एक 10-15-20 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया एक तरीके से डिस्पोजेबल मिल गया जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और वो अपने हिसाब से लीज आउट कर सकता है, एक अच्छे ब्रांड को लेके आ सकता है। राइट, और अगर वो उस अच्छे ब्रांड को लेके आएगा तो जो बाकी इंडिविजुअल शॉप्स बिकी हुई हैं उसमें भी फुटफॉल आना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो भी बाकी भी लीज आउट हो जाएंगी। So it is a very good win situation for a developer to lease out a bigger area to a brand, right? And it is also a win-win situation for the customer who actually wanted a premium location shop but didn't have that much budget. तो सुनिए, इसमें एग्रीमेंट वगैरह की जिम्मेदारी कौन लेता सर है? ये ट्राइपार्टेड एग्रीमेंट होता है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये 1-to-1 टेनेंट एग्रीमेंट नहीं होता। नहीं होता बिकॉज नहीं होता आप तो सर, कॉमन, यू आर आप होल्डिंग कॉमन कॉमन पार्ट में प्रॉपर्टी। हो। एंड सेकेंडली अगर एक कोई बड़ा ब्रांड आएगा सर, कोई भी नाम ले लेते हैं, कोई भी अच्छा बड़े ब्रांड का नाम ले लेते हैं, अगर कोई भी बड़ा ब्रांड आएगा वो नहीं चाहेगा कि वो 300 लोगों के साथ इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स करे। इट इज प्रैक्टिकली एंड लॉजिस्टिकली नॉट और मेरे ख्याल से वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं आएगा, आएगा भी नहीं। वो तो आएगा तो बिल्कुल। 5 साल 10 साल के लिए आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सो उस केस में वो डेवलपर से एग्रीमेंट करता है और डेवलपर ऑलरेडी सारे बायर्स तो डेवलपर से ही लिया हुआ है उन्होंने, तो वो लोग मिलके एक ट्राइपार्टीड एग्रीमेंट हो जाता है जिसके अंदर की टेनेंट डेवलपर को पे करता है और डेवलपर जिस शेयर में जिसने जितनी जितनी जगह ले रखी है उनको उस हिसाब से पे कर देते हैं। तो इस सब को सुन के मेरे को लग रहा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थोड़ी झंझट मुक्त लग रही है मेरे को। झंझट मुक्त लग रही है, अच्छा ठीक तो है। तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे आपने तो मेरे को एडवाइस कर दिया या फिर मैंने किसी को आपके पास भेजा, आपने एडवाइस कर दिया, हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट होते हैं। हाँ जी। तो आप क्या चेकलिस्ट चाहेंगे कि वो देख ले? आप तो नेचुरली एडवाइस करें, आप देख चुके हैं, ठीक है, बट एक थोड़ा होता है ना कि वो भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। तो जनरली वो क्या देखे कि वो डेफिनेटली वो कहे कि भाई सुनील जी आपकी एडवाइस ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, और उसको ये भी लगे कि मैंने भी कर लिया काम, बिकॉज हाँ। घर वाले बोलेंगे तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा? तो सर मैं तो हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ, जहाँ से मैं शुरू करता हूँ, कि आप अपनी सिटी के टॉप 10, 15, 20% डेवलपर्स, देखिए अगर छोटा शहर है ही 10 डेवलपर्स तो टॉप 2-3 पकड़ लीजिए, और अगर गुड़गांव जैसा बड़ा शहर है जहाँ पे बहुत सारे डेवलपर हैं, सो आप टॉप 10, 15, मैक्सिमम 20%, टॉप 20% का एक आप निकाल लीजिए कितने कौन कौन से डेवलपर्स के नाम उनके अंदर आते हैं, उनके प्रोजेक्ट स्टडी कीजिए जो नए लॉन्चेस हैं, उनके रेरा सर्टिफिकेट्स चेक कीजिए, दैट इज़ द सेकंड थिंग। हाउएवर दीज आर बिग कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज, तो कंप्लायंस का इशू होता नहीं है इनके साथ, बट एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू चेक एवरीथिंग, Yes. so we should check that and we should go ahead. In case you are not picking up that 20%, then there are other things to look at. जैसे कि आपको ये देखना है कि मेरे को किस प्राइस पे प्रॉपर्टी मिल रही है। जैसे मैं आई डोंट टेक एनी नेम्स, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे डेवलपर्स ने ये जो पीछे तेजी आई गुड़गांव में, बहुत सारे डेवलपर्स ने उस प्राइस पे प्रोजेक्ट लॉन्च करा जिस प्राइस पे शायद सेम लोकेशन पे डीएलएफ बेच रहा है। ओह, राइट, कि जी डीएलएफ तो इस प्राइस पे बेच रहा है, हम तो सेम लोकेशन में हैं, हम तो सेम सेक्टर में, हम तो उनसे भी बेटर बनाएंगे। देखिए मैं मना नहीं करता कि वो उनसे बेटर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, तो जब बनेगा तब पता चलेगा। कब पता रहेगा? लेकिन आप जिसने गुड़गांव बसाया है उसको आप ये कहना चाह रहे हो कि हम उनसे बेटर बनाएंगे, तो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्स यू हैव, व्हाट इज द प्रूफ यू हैव, राइट? यू हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यूएशन। इफ यू आर बाइंग अ प्रॉपर्टी नेक्स्ट टू दिस प्रॉपर्टी एट द सेम प्राइस, राइट, देन व्हाई आर यू डूइंग इट? और मेरे ख्याल से पहले मैं आपको कहूँ तो पहली चॉइस आप बोलोगे कि नहीं वही है। वही है, एग्जैक्टली। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बट नेचुरल ब्रांड के साथ तो बंदा जाना बट चाहेगा। सर अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो सेम विसिनिटी में और आप सेम प्राइसिंग उसको पे कर रहे हो उस डेवलपर को, तो सर जिस दिन, आज तो तेजी है, जिस दिन किस्तें आनी रुकेंगी Yes, yes, तो वो तो बना देंगे, वो तो बना तुम बना पाओगे। अगर आपको लगता है, आपने उनकी मैथ्स पढ़ी है, आपने उनके पेपर्स देखे हैं, आपको लगता है बना पाओगे तो ठीक है, बट मेरे लिए एक ये रेड फ्लैग है, ये स्टडी करना और जरूरी दूसरा मैं जो फाइनेंस एस्पेक्ट सोचता हूँ कि रीसेल वैल्यू भी है। एग्जैक्टली, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहेगा। रहेगा। मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि भैया मेरी प्रॉपर्टी
का रीसेल वैल्यू क्या रहेगा और कितना इजी है एग्जिट। कितना इजी एग्जिट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि एग्जिट कितना इजी है। आज प्रॉपर्टीज तो गोल्फ कोर्स रोड पे भी है, बट एक 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप खरीदोगे और आप सोचोगे कि मैं 40 की बेचूंगा, तो क्या वो एग्जिट इजी होगा आपके लिए? मिल जाएगा, बायर मिलेगा उस लोकेशन पे 100% मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लग जाएगा उसको थोड़ा सेल time आउट लगेगा। करने में। वही प्रॉपर्टी अगर आपने 2 करोड़ रुपए की शायद द्वारका एक्सप्रेसवे पे ली है और वो आगे चल के व्हाटएवर ईयर्स के बाद आप उसको 3 पे 4 पे बेचना चाहोगे, तो शायद वो नंबर ऑफ बायर्स वहाँ पे ज्यादा होंगे भाई। ज़्यादा होंगे। तो सुनील, एक मैं $1 मिलियन क्वेश्चन आपसे पूछ हाँ रहा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिकॉज गुड़गांव में मैंने देखा कि अब अप्रिसिएशन जिस लेवल पे पहुंच गए, करेक्ट, तो किसी को भी इसमें अंदर एंटर करना, हाथ डालने में डर सा लगता है। करेक्ट। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, व्हाट शुड बी द मिनिमम किटी अवेलेबल विथ वन पर्सन, और व्हाट बजट वन शुड कीप टू एंटर इनटू द गुड़गांव मार्केट? राइट, और वहाँ पे देखिए, मेरे को ब्रांड भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मेरे को लोकेलिटी भी अच्छी चाहिए, बिल्कुल सारे चाहिए। पैरामीटर देखते हुए आप क्या सजेस्ट करोगे, या फिर आप कहोगे बजट बढ़ाओ? राइट, सो आई विल लाइक टू हैव योर एडवाइस ऑन दिस। ओके सर। देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है। आप तो देखिए इन्वेस्टर हैं जैसे, तो आप कोई अपने एंड यूज के लिए घर तो देख नहीं रहे हैं, और एज एन इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं तो सो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो मार्केट्स पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऐसा नहीं है गुड़गांव के अंदर 1-2 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल हैं। आप सर्च करें, आपको मिलती हैं। सिर्फ चैलेंज ये है कि आप डेली एड्स देखते हैं, न्यूज़पेपर एड्स देखते हैं, इंस्टा एड्स देखते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं वो 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ रुपए वाले प्रमोट किए जा रहे हैं। मैं तो तो कहीं ना यार कहीं आपको सुनील लगता वही है देख रहा हूँ आजकल, कोई 9.5 करोड़ में लॉन्च हो रहा है, हो रहा है। कोई 15 करोड़ हो रहा है। Correct, कमीलिया की तो बात ही छोड़ दो। correct, correct. सो सम बेंचमार्क आई हैव इन माइंड टू एडवाइस माय क्लाइंट Correct. और माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, Correct. क्योंकि सबका कहना होता है अब तो हमारे से रीच से बाहर हो गया, बट मेरे ख्याल से आप जैसा कह रहे हो ऐसा नहीं हुआ है। सर देखिए, रीच से बाहर नहीं है। अगर अगर आपके जो भी आप कह रहे हैं, जिनको भी आपने एडवाइस करनी है, अगर वो लोग अपने लिए घर देख रहे हैं, इफ इट इज़ देयर फर्स्ट हाउस, उनको रहना है, तो सर एट द एंड ऑफ द डे उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेच करके थोड़ा सा पुश करके लेना तो है ही। डेफिनेटली। दे कैन डेफिनेटली गो फॉर अ रीसेल प्रॉपर्टी। अभी से पता है क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की। इसको आप 2 मिनट समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कि- समझना चाहता हूँ हाँ, कि चैलेंज ये है कि आज एक छोटे शहर से कोई आया, उसने अपने बिजनेस में बहुत अच्छा किया, या उसने अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा किया, ही इज वर्किंग एट अ गुड लेवल इन अ गुड कॉर्पोरेट और a multinational company. He's got married also. Wife is also working at a good company. So उनके अगर आप रिलेशनशिप में और फ्रेंड्स में देखो ना, तो उनको लगता है कि यार ये बच्चे ने अचीव कर लिया है, हाँ, ठीक है ना। वेरी राइट। लेकिन वो दोनों बच्चे मिलके भी गुड़गांव में घर नहीं ले पा रहे, राइट? क्योंकि उनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। उनको ये लग रहा है कि यार हम तो इतने अच्छा पैसा कमाते हैं, हमें तो उस कॉन्डो में घर लेना चाहिए, बट वहाँ तो आता नहीं है। तो अगर वहाँ आता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़गांव में नहीं आता है। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो। आप ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, जो 5-6 साल 7-8 साल पुरानी हो गई हैं, आप क्या वो अच्छी सोसाइटीज नहीं है? क्या नहीं, वहाँ बहुत- क्लब्स नहीं है? सब बढ़िया। क्या वहाँ पे सारी एमिनिटीज नहीं है? सब कुछ है सर। आप उस प्रॉपर्टी में खरीद के रहना शुरू कर दो। वाई डू यू वॉन्ट द टॉप ऑफ द टॉप क्लास? ठीक है, अभी ले लो, आप थोड़ा और ग्रो करो अपने लाइफ के अंदर, आप तब उसको पिक कर लेना। एटलीस्ट घुसो तो सही, एंटर तो करो। भाई आप एंटर कर जाओगे, आज 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ना लेके अगर आपने 3 करोड़ की भी ले ली और आपने रहना शुरू कर दिया, तो आगे चल के ये 3 करोड़ की प्रॉपर्टी कुछ आपको कमा के भी तो देके जाएगी। सो देन वंस यू ग्रो इन योर लाइफ, उनका फिर रेंटल तो चलता ही होता है ना यार। एग्जैक्टली, रेंटल तो चल ही रहा At least rental है, बंद गाँव होता में है काम आपका। कर रहे हो हाँ, तो रेंटल तो चल ही रहा है। तो आपका से कहने का मतलब है कि उस टाइम जो कैपेसिटी एक प्रॉपर्टी लेके डाल दो। देखिए वैसे भी आज नहीं, आप पीछे भी चले जाइए 5 साल 10 साल पहले भी गुड़गांव में जो आता था वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही लेता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे प्राइस स्केल अप हो गए हैं और मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप उनमें पिकअप कर लो। एटलीस्ट यू शुड एंटर, बिकॉज जिस तरीके से ये मार्केट ग्रो कर रही है, जिस तरीके से गुड़गांव कंपाउंड कर रहा है आइल से, अभी भी नहीं लोगे तो फिर तो ले भी नहीं पाओगे। बहुत से लोग अब ले ही नहीं पाएंगे, मैं ये बोलना चाहूँगा। और जो अभी ले सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेच करके, अगर वो अभी नहीं लेंगे तो वो आगे नहीं ले पाएंगे। अच्छा, एक सुनील, मेरे साथ और एक फिनोमेना होती है कि फाइनेंशियल एडवाइजर होने की वजह से लोग बाग पूछते हैं कि सर कहाँ इन्वेस्ट करें, और ये एक जनरल गाइडलाइन हमारे लाइन में है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी थोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, आप थोड़ा आपके शेयर में भी होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, और रियल एस्टेट में भी होना चाहिए। बिल्कुल मतलब होना एक दादा दादी कहते हैं छत तो बेटा होनी चाहिए। होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड भी होना चाहिए। तो इसमें अब जहाँ तक मैं रिटर्न की बात करूँ तो मैं एटलीस्ट ये समझता हूँ कि इन तीनों के कहीं ना कहीं रिटर्न तो मैच करना चाहिए।
तो जो मैं गोल्ड और म्यूचुअल फंड और शेयर की बात करता हूँ तो मैच कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में आप क्या कहोगे? बिकॉज अभी कई बार जैसे बबल की बात की जाती है, या फिर मैं 3 साल के ट्रैक से वर्सेस 10 साल के ट्रैक देखूँ, तो एवरेज रिटर्न सुनील वही आ रही है, सेम है 10 या सर, 11%। सेम है सर। तो क्या आपको लगता है कि आगे भी ऐसी रिटर्न हमें मिल पाई? सर सेम रिटर्न है। आप अगर आज गुड़गांव को बहुत सारे लोग बबल 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 बोल रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा स्टडी करो। पिछले 3 साल के अंदर डिमांड आई, वो भी बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड, बहुत सारे रीजंस थे। कोविड में दिल्ली में काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई, लोग कंजस्टेड एरिया से बाहर निकल के आना चाहते थे। तो जब वो लोग गुड़गांव में आए, गुड़गांव में उन्होंने घर खरीदे, इनफैक्ट उन्होंने बड़े घर खरीदे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन था। तो हस्बैंड वाइफ को भी अपने ऑफिस की कॉल्स लेनी है, 2 बच्चे हैं तो उनको अपनी स्कूलिंग की भी कॉल्स लेनी है, आपके एल्डरली पेरेंट्स हैं तो उनको भी एक रूम चाहिए। सो वो गुड़गांव तो आए, खुली जगह पे भी आए, बट बड़े घर भी लिए। अब हुआ क्या कि वो सारे घर जो लोगों के, जो बिल्डर्स के बहुत टाइम से नहीं बिके थे, पड़े थे, वो सारे बिक गए। और तब बिल्डर्स ने और डेवलपर्स ने भी अपॉर्चुनिटी देखी कि अभी भी डिमांड आ रही है, और जो वहाँ से कस्टमर्स आए उनको ये लगा कि चलो अब जो घर बने बनाए थे वो तो बिक गए, कोई बात नहीं, वहाँ तो नहीं रहना हमने, हम बुकिंग में घर ले लेते हैं, 2-3 साल में मिल जाएगा, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे 2-3 साल। करेक्ट। तो डिमांड आई। तो ये एक लिमिटेड डिमांड थी जो आई बिकॉज ऑफ सर्टेन इवेंट विच हैपेंड। तो वो पिछले 3 साल के अंदर एक 100 रुपये की चीज़ 200, 250, 300 रुपये पे भी गई। लेकिन आप ये भी देखिए सर कि 2012-13 से लेके और 2020 तक रियल एस्टेट मार्केट वॉज स्टेगनेंट। देयर वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न। तो अब अगर हम उसको एज अ 10 ईयर हॉराइजन देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी आप यही करते हैं ना सर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स। नहीं, उसमें हमें एडवाइस करना होता है कि 5 साल तक तुम टच नहीं करोगे, तभी इसमें लगाओ, तभी इसी में मेरा ये लगाओ। एडवाइस रहती है। अदरवाइज इससे पहले वो क्या करते हैं कि हर दूसरे साल आ जाते हैं, बोले सर ये तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव। लेकिन मैंने देखा है, मेरी जो अभी जर्नी है, कि 5 साल तक जो भी रिटर्न करता है वो डबल से ज़्यादा ही मिलता लेके है। जाता है। आप देखिए गोल्ड, आई थिंक प्रॉपर्टी में आप एडवाइस कर दो ये हो रहा है। सर यही हो रहा है एग्जैक्टली। आप तो फाइनेंस में हैं, आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। गोल्ड भी डिप हुआ था, ठीक है ना, डिप तो प्रॉपर्टी भी हुई, ठीक है, Correct. डिप म्यूचुअल फंड भी हुए थे, अच्छे खासे माइनस में गए थे। इनफैक्ट वो प्रॉपर्टी तो टेंजिबल एसेट है, वो तो नॉन टेंजिबल है, करेक्ट। राइट। तो अगर आप इनका इन सारे एसेट क्लासेस का आप स्टडी करेंगे तो 12-14-15% का एवरेज रिटर्न ये सारे एसेट क्लासेस देते हैं, बी इट गोल्ड, बी इट म्यूचुअल फंड्स, बी इट प्रॉपर्टी। एंड if you go for 10 years from 2013 to 2023-24, you have got the same average return. कोई बबल नहीं है। ये जो पेंडिंग रिटर्न था वो ड्यू था, वो मिला है बस। लेकिन मिला उसी को है जिसने पेशेंस करा, 7 साल तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची और अब बेची। जो पैनिक में बेच गया वो म्यूचुअल फंड में भी नहीं कमाता सर। कॉम्प्रोमाइज मोड में बच गया, उसके लिए तो आप जैसे लोग एडवाइस उतना ही कर पाएंगे जितना आपको मार्केट, आप उससे ज़्यादा आप तो भी नहीं अरेंज कर सकते। सर मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि आज अगर आप प्रॉपर्टी में एंटर कर रहे हो, सो प्लीज डोंट कम एज अ ट्रेडर, हाँ राइट, कम एज एन इन्वेस्टर और एन एंड यूजर। एंड यूजर का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, उसको तो घर चाहिए रहने के लिए, वो अपना घर ले रहा है, उसको वैल्यू मैटर ही नहीं करती। उसको आज की वैल्यू मैटर करती है कि मैं किस रेट पे एंटर कर रहा हूँ, कल को वो नीचे चली जाए, ऊपर चली जाए, वो रह रहा है अपने घर के अंदर, उसके लिए तो वो जीरो है ना। लेकिन कभी सुनील मैं देखता हूँ हाईलाइट होती है यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की इशूज, राइट, गुड़गांव के, राइट। तो कई बार डर लगता है कि इन्वेस्ट तो कर दिया, आज 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में लग गई, कल को इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्योस कर देंगे कि हमें प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके ऊपर आपका कुछ है ओपिनियन? सर कई बार मुझे, ऑल्दो मैं मानता हूँ कि अथॉरिटीज का इशू है, आपका नहीं। नहीं, कई बार मुझे पता है क्या लगता है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर ना होने के कारण ये मार्केट चल रही है गुड़गांव की। मैं उसका बड़ा सिंपल सा रीजन बताता हूँ सर। मैं दिल्ली रहता था, मैं अब कुछ टाइम 10-12-15 साल से गुड़गांव रह रहा हूँ, राइट। दिल्ली से मैं गुड़गांव क्यों शिफ्ट हुआ, बहुत सिंपल सा रीजन था, मेरे को 1.5 घंटा आने में लगता था, 1.5 घंटा जाने में लगता था, ठीक है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए, ठीक है, और मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊं और आधे घंटे में आ जाऊं, मैं घर ही नहीं खरीदूंगा गुड़गांव में, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग नहीं खरीदेंगे। आप कह रहे हो कि ये थ्रेट में अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। हर थ्रेट में अपॉर्चुनिटी तो होती है, राइट। बट ऐसा मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है या अच्छा नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली वो बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। और इंटरनेशनल लेवल पे ये शहर एक आइकॉनिक शहर है, और वहाँ पे इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियोज़ में देखना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट आप गुड़गांव में ही देख लीजिए सर, मैं तो दिल्ली और गुड़गांव को बता रहा था आपको कंपेयर करके कि मैं शायद दिल्ली में ही रह जाऊं अगर आधे घंटे में मैं अपने घर पहुंच सकूं, तो मैं यहाँ क्यों शिफ्ट हूँ। लेकिन इसको हम एक दूसरे तरीके से भी समझते हैं। आज गुड़गांव में ही
जो एक माइक्रो मार्केट बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप है वो ग्रो कर जाती है। आप गोल्फ कोर्स रोड को देख लीजिए, जब तक उस रोड पे पानी भरता था, आपने तो देखा होगा हाँ उस हाँ, रोड पे मैंने पानी तो भरता हुआ फोटो और देखी कश्तियां है। चलती हुई करते कारें डूबती हुई। आज वो रोड इतनी अच्छी डेवलप कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, तो वहाँ प्रॉपर्टी प्राइस बढ़े ना सर। मतलब हम जो गुड़गांव वाले हैं वो रिएक्टिव मोड में काम करते हैं, Exactly. प्रोएक्टिव नहीं करते हैं। आपका ये कहने का मतलब है। एग्जैक्ट होता तो ऐसे, चल तो ऐसे ही रहा है, मैं तो यही बोलूंगा। यार सुनील, आपसे जो डिस्कशन हुआ काफ़ी एक्सटेंड तक मेरे को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई लगे आपके। हाँ जी। पर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि एज ए इन्वेस्टर, मैं एज ए इन्वेस्टर हूँ, तो आपकी क्या गाइडलाइन रहेगी, मतलब क्या फील करते हो? एक फीलर होता है ना, तो आप क्योंकि डीपली इन्वॉल्व हो, राइट हम लोग तो कभी कभी घुसते हैं, समझते हैं इस चीज़ को। राइट। सो आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो को कैसे गेज करते हो? ओके, तो सर देखिए, पहली बात, वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट अनदर नेक्स्ट 3-4-5 years द रिटर्न्स विल नॉट बी एक्सपोनेंशियल, इट विल बी इंक्रीमेंटल फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि कुछ एक शॉर्ट टर्म में एक्सपोनेंशियल क्यों हुई Correct. और एवरेज आउट करके क्या निकला और आगे इंक्रीमेंटल क्यों होगी। सो पहली बात तो इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीमेंटल। सेकेंड थिंग, एक चीज़ हमारे को और समझनी चाहिए, अभी भी बहुत जूस है और अभी ग्रोथ होनी है। बिकॉज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जो ये प्रोजेक्ट्स सोल्ड आउट हुए, ये 1 day सोल्ड आउट हो गए या हाँ, अच्छे ये project मैंने भी गए। आई वाज सरप्राइज। हाँ, तो आप ये देखिए सर, इन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी कब है? ये 40-40 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, 32-30-40 मंजिल की, 50 मंजिल की बिल्डिंगें बन रही हैं। अगले 3 साल तक ऑलमोस्ट किसी भी प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं है, लीविंग अपार्ट 3 साल तो शायद आप थोड़ा सा कम कह रहे हो, इनसे भी ज़्यादा मैंने तो देखिए, कुछ देखा कुछ है। पहले लॉन्च हो गए थे, तो कुछ 2-4-5 प्रोजेक्ट शायद डिलीवरी पे आ जाएंगे, बट मोस्ट ऑफ दी, आई विल से मोर देन 80-90% ऑफ दी प्रोजेक्ट्स आर नॉट गेटिंग डिलीवर्ड इन नेक्स्ट 3 years। Correct. तो इसका मतलब अगले 3 साल भी अगर कोई बाहर से गुड़गांव के अंदर आना चाहता है और घर खरीदना चाहता है, तो उसके लिए सप्लाई नहीं है। ये काफी राइट, पॉइंट सो आज भी अगर आपको, और दिस इज द राइट, अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इज दिस द राइट टाइम टू Yes, ये that I want to know. यस, दिस इज एक्चुअली, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, पहले जब प्रोजेक्ट 1 day सोल्ड आउट हो रहे थे, तो 1000 अपार्टमेंट्स के लिए जब 6000 चेक्स आते थे, तो एक इन्वेस्टर की ना सबसे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन होती थी वो ये होती थी कि यार मुझे यूनिट मिल, किसी भी तरीके से मुझे यूनिट मिल जाए। अब लोगों को EWS फेसिंग, नाला फेसिंग यूनिट भी मिलती थी तो ले लेते थे, क्योंकि मिल ही नहीं रही, तो जो मिल रही है वो ले लो। राइट, लेकिन आई थिंक नाउ इज द टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस टाइम यू कैन एक्चुअली गो टू बिल्डर्स ऑफिस, सिट, चूज द यूनिट यू वांट। सबसे पहला पॉइंट कि सर आज आप बिल्डर के पास जाके यूनिट चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से नेगोशिएट कर सकते हो, अपने हिसाब से पेमेंट प्लान नेगोशिएट करके ट्राई कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पेमेंट प्लान मैच हो जाए। तो एक इन्वेस्टर को और क्या चाहिए होता है सर? एक इन्वेस्टर को यही चाहिए होता है कि मेरी मनपसंद यूनिट मिल जाए, मनपसंद प्रोजेक्ट के अंदर मैं बिल्डर के साथ बैठ के नेगोशिएट कर लूँ, मैं कोई ऐसा पेमेंट प्लान बना लूँ जिसमें कि मेरे को कुछ ब्रीदर मिल जाए, ताकि मेरे को कुछ एप्रिसिएशन मिल जाए और मैं एग्जिट कर पाऊँ। राइट, ये तीनों चीज़ें पहले नहीं मिल रही थी, क्योंकि पहले फोमो में लोग मतलब आप भागे ये जा कह रहे रहे हो थे, कि चेक दिए जा रहे थे। इसका आप ये कह रहे हो कि बेसिकली मेरे को अपनी जो चॉइस है उसको लेने के लिए दोनों तरह से अवेलेबिलिटी प्लस थोड़ी नेगोशिएशन पावर भी आप। दोनों चीजें हैं ना सर आपके पास, और कहीं ना कहीं पेमेंट प्लान भी शायद आपके लिए कुछ अच्छा बन जाए अगर आप बिल्कुल, नेगोशिएट करो तो। बिल्कुल, और बिल्कुल। एक और बात समझिए कि जो प्रोजेक्ट बिके हैं सारे, अगले 3-4 साल उन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी नहीं है, बिकॉज दीज आर 30-40-50 स्टोरी हाई बिल्डिंग्स। राइट, और फिर पूरा जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर आपको प्रॉमिस कर रहा है, वैट बीइंग इट अ लैविश क्लब हाउस या और भी जो भी एमिनिटीज़ आपको प्रॉमिस की जा रही हैं, वो सब बनने में, उनकी फिनिश होने में टाइम लगेगा। तो अगर अगले 3-4 साल कोई डिलीवरी नहीं आएगी, तो डिमांड सप्लाई मिसमैच तो चलेगा ही। डेफिनेटली। तो यू विल मेक मनी इवन इन दिस मार्केट, देयर इज नो डाउट ऑन इट। थैंक्स सुनील, बहुत अच्छा लगा तो आपसे बातचीत करके, और मेरे काफ़ी चीज़ें अनआंसर्ड थी, थोड़ी आंसर्ड होगी, कुछ फिल्टर भी कर पाया मैं ओके, कि मेरे को खुद को समझना या किसी को समझाना हाँ जी, हाँ जी, आसान हो जाएगा मेरे लिए। सो थैंक्स अ लॉट, आई विल बी इन टच डेफिनेटली। यस यस, श्योर सर, ऑल राइट, Thanks, थैंक्स अ thanks. लॉट। ओके।